Okay, so hello everyone. My name is Sonali Pandey, and you're watching You versus You, episode 9. Yeah, 9. Okay. So we have our guest ready with us. So Vishesh, Asadharan, Asamanya, special, one of a kind. I don't know what to say. Thank you so much for joining, Vishesh Deep. And I will just take a moment to introduce you. So he loves interacting with people and love talking to people. He is, as I said, one of a kind, and he is an engineer and who chose happiness to be the priority in life. His life is very simple and basic, yet inspiring. So please welcome so much Vishesh Deep for joining the call. Hi, it's a pleasure to be here. That was a very short intro for you. I know you have did a lot of things in life, but then yeah, very basic and very short intro for you. So thank you for inviting me. It was a pleasure to be here today. And Thank you so much. after a long time, we are catching up. It's a good thing that we're doing it online. Everybody can see us talking. थैंक यू लेट्स स्टार्ट कि हम लोग आज डिस्कस क्या करेंगे. हम लोग बहुत ही नॉर्मल सी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे हम रूटीन क्या है आपका, या जो भी चीजें हैं लाइफ में जो चलती हैं आपके इन एंड अराउंड, क्या चीजें हैं आजकल जो बहुत ही ज्यादा आपको इंस्पायर करे हुए हैं, मतलब इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे. तो स्टार्टिंग से हम ये करते हैं स्टार्ट कि हम बोलते रहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्थ हेल्थ करते रहते हैं पूरे दिन. तो दो चीजें होती हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. फिजिकल हेल्थ ठीक है, लोग बात करते हैं आजकल, हर दूसरा इंसान रनिंग करो साइकिलिंग करो बात करते रहते हैं हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि हाँ रोज की लाइफस्टाइल में उन्हें फिजिकल हेल्थ को कैसे लेकर आना है. बट जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और मतलब वो फिजिकल हेल्थ से बिल्कुल भी आई नो कम नहीं है, क्योंकि वो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? You know, somebody asked me a few days back, how regular should the meditation be? How regular you should meditate? Yeah. So I asked that person another question. मैंने उनसे एक और सवाल पूछा. मैंने पूछा आपको कितना रेगुलर खाना चाहिए? कहते हर रोज खाना चाहिए. मैंने कहा हाँ ये तो है ही, नवरात्रि में तो चाहे फास्ट रखना होता है लेकिन उस टाइम डबल खाते हैं लोग, है क्या नहीं? अभी नवरात्रि आने ही वाला है. मेडिटेशन इज द फूड फॉर द माइंड, and that takes care of the health, mental health. आप देखो फूड पे ध्यान देते हो, which takes care of your physical health, isn't it? Some people follow the keto diet, some people follow the water diet, some people follow something, right? And they go out for the gym and do everything. Now, do you think that there's a dumbbell for the mind? आप डंबल मारोगे माइंड स्ट्रांग हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पुशअप्स मारोगे और माइंड स्ट्रांग हो जाएगा? Exactly. Mental health is equally important. I'm telling you, if your mental health is very good, it's strong, your physical health automatically gets okay. Right? As we say in our programs, the quality of a life depends on the state of our mind. So the better your mind is at, the better position your mind is at, the better is your quality of life. Yeah. And Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji says this, very beautifully he says this. A weak body can be carried out by a strong mind, but a strong body cannot be carried out by a weak mind. Lovely. This is so beautiful that you can go out to gyms, like I was mentioning, you can go out to gyms and develop body for yourself. But I'm telling you that workout in the gym is only possible with a determined mind. Otherwise, you'll get tired. You'll just sit on the treadmill and eat Snickers. The mind is everything. The mental health is everything.
And I think, you know, a lot of people, this new age is so good. I remember 14 years back when I started, you know, investing a little bit of time on my mind. People would say, अरे पागल है क्या, अभी कहाँ एज ही नहीं हुआ है तेरा, तो अभी तो थोड़ा बाल सफेद होगा, ऐसे even if problem आएगी तब करना है. But right now, people like you, people like other people throughout the country and throughout the world, they are more aware. No, they want to invest things on their mental health. This pandemic, you know, I don't know if you know this. So the first 3 things which were mostly searched on Google was, first was Corona, second was COVID-19, third was recipe. Okay. So people wanted to just take care of their body, and you know the next few searches were anxiety, how to sleep, how to come out of depression. Yeah. Basically, people are still prioritizing their food and everything, whereas your state of mind actually enhances everything. You know, one thing that I've noticed, I've interacted with a lot of Corona patients of late. So they said that, you know, as long as our family was supportive of us, we had that strength in our mind, and we recovered fast. The people who did not have a mental support, they had a lot of difficulty in recovering and even feeling good afterwards. You know, one security in mind that, okay, I am being taken care of. Yeah. That helps a lot. And that can only come when you are able to meditate. When you know, meditation is what? Talking to yourself. And we rarely talk to ourselves. Rarely. हमें ये जरूर जानना है कि उसके जीवन में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ. तभी तो बिग बॉस जैसे सीरियल बहुत हिट है. सच में. We are very curious कि दूसरे के जीवन में क्या होता है हमेशा. Right. लेकिन अपने जीवन में क्या हुआ वो अपने से बात करके पता चलता है. और मैं बता रहा हूँ, आप एक टाइम पे बंदा सोचता है, एक टाइम पे one person just halts and sees there's nothing going good in his life or nothing going great in his life. I am telling you, if you were talking to yourself regularly, you would know that how much you progressed over the period of years, how much you move forward. But we've forgotten to notice that. You know, today only I got to know this. I did not know this. Every 45 seconds, a person is committing suicide. Did you know this? Every 45 seconds. That's huge. Every 10 seconds, a person is landing into depression. Why? Because they think that, you know, कोई मुझको छोड़ के चला गया, मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, मेरे को नौकरी नहीं मिला जो मुझको चाहिए था, and they feel bad. They're not able to cope up with it. You remember that movie 3 Idiots? जॉय मुखर्जी को क्या पड़ा था? पंखे से लटकने के लिए. हाँ, अभी क्या सिनेरियो है कि देखो तो apparently Amir Khan did not even have a degree in that movie. His degree was given to Javed Jafri. Yeah. He still had 400 patents to his name. That's something commendable, isn't it? But people, he had the expertise, knowledge था उसके पास, वो डिग्री उसने दे दिया. नॉलेज की बात नहीं, मतलब डिग्री उसको लगा उसका डिग्री अटक जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा. अरे 400 पेटेंट बना दिया व्यक्ति ने बिना डिग्री के. Actually, I'm getting. Just the strength of the mind, you know, because that is how the difference is. You've got to talk to yourself. Very true. Okay. और बताइए. So, what is meditation according to you? और सही तरीका क्या है meditation करने का? How do you do it? You know, what is meditation according to me is a mind without agitation. That is what Gurudev says. So, a mind without agitation is meditation. Okay. But the common mistake that all of us commit while starting to meditate is that
मैं जैसी आंखें बंद करूंगा, आंखें खोल के बैठूंगा, आई शुड बी थॉटलेस, आई शुड बी फोकस्ड। एक दीवार में बिल्कुल होगी, मैं वहां पे देखूंगा, बस मेरे को निर्विचार हो जाऊंगा, आई बी थॉटलेस, आई बी राइट इन द डेप्थ ऑफ द थिंग्स, आई जस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट रेल्म्स ऑफ द यूनिवर्स, आई गो टू एसगार्ड विद थॉर। ये सब कुछ आपको मन में लगता है ऐसा, बट the process of meditation is actually deconcentration. The result of meditation is concentration. देखो, अगर आप प्रोसेस के वक्त भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा तो वो भी एक अलग विचार है कि नहीं, मुझको अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना है। The process of meditation is let it be and let it go. जो जैसा है उसे वैसे छोड़ दें और जो आ रहा है उसको जाने दें। मतलब कोलोकियल लिंगो में हम ऐसे बोलते हैं ना, मतलब आया तो वेलकम, गया तो भीड़ कम। राइट। विचार भी ऐसा ही है। और अब मेडिटेशन करते कैसे, आपने बोला करते कैसे, पहले तो एक चीज ध्यान रख लो, मेडिटेशन है क्या। अब ये बड़ा ट्रिकी है, मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन हो जाता है, इट हैपेंस, इट इज नॉट अ डूइंग। व्हाट इज मेडिटेशन? इज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ करा, वो भी तो विचार हो गया ना। तो मेडिटेशन क्या है? द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन मेडिटेशन इज सिटिंग स्ट्रेट। देयर आर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन व्हिच यू कैन लाई डाउन आल्सो, बट अगेन you might mistake it as meditation, but most of the time that you get deep sleep, right? Yeah. So it's good that you sit straight. The back should be right, and you sit very comfortably and very easily. Nothing is required. Having said that, ऐसे meditation नहीं होगी। आपको एक चीज, चलो, I have to ask you this question. Can I also ask questions, Sonali? Here, I can, right? Yeah. It is open-ended. Okay. So तूने you know, who taught you A for apple, B for boy? Who taught you this? Mummy, Papa. Mummy या पापा में से कोई parents? Good. So who taught you 1 + 1? Parents only. Yeah, but before going to a school, like parents only. So 1 + 1 is like 2nd grade. So teachers, right? Okay, 1 2 3 मम्मी पापा ने सिखाया, पर हाँ वो थोड़ा addition subtraction आगे जाके। Yeah. Right. Algebra. Who taught you algebra? School teachers only. Calculus. Same. Okay. Engineering. Fourier, Laplace, सब कुछ. Right. जो वहीं का वहीं है अभी. Okay, good. अगर देखो आपको इन चीजों को सीखने के लिए एक टीचर की आवश्यकता पड़ी, तो मेडिटेशन सीखने के लिए भी तो चाहिए होगा ना? Yeah. The foremost thing is a teacher who is experienced in it. Somebody who is an expert can only teach you one. But what I see right now is, you know, not demeaning any part, but people go for these apps. Some meditation apps are there, and they see, अच्छा, चलो, हाँ. मतलब उसमें क्या कहते हैं, सांस लो, सांस छोड़ो। अरे सांस ले, सांस छोड़ने तो किसी को भी अच्छा लगेगा। बट वो सांस से बहुत ऊपर की बात है ना। अब आपको गुस्सा आता था तो मम्मी क्या बोलती थी, 1 से 10 तक काउंट करो, लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, तब तो ठीक लगता है, हाँ, आई फील ओके, आई फील गुड। या कुछ लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि पानी पी लो, या फिर कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ करो, लेट जाओ, लाई डाउन करो, डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन यू रिक्वायर अ टीचर। Having said that, meditation happens, but it happens through some instructions, through somebody's presence. तभी हमारे कल्चर में एक चीज कहा गया है, गुरु बिना गति नहीं। तभी तो आप देखो ना, ग्रेविटेशन को भी गुरुत्व आकर्षण कहा गया। कुछ और बोल सकते हैं ग्रेविटी को। न्यूटन discovered gravity and spoiled everybody's life. Engineers like you and me, our lives were spoiled because of him. ना वो एप्पल देखता गिरता हो, ना हमें ऐसे ग्रेविटी पढ़ना पड़ता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब कुछ ना करना पड़ता। बट हैविंग सेड दैट, देखो ना, बड़ा हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर, आई थिंक वेरी प्रोफाउंड। व्हाई डू वी से गुरुत्वाकर्षण, गुरु तत्व का, दैट तत्व व्हिच इज देयर इन एवरीबॉडी।
But some people become expert at something. Somebody is an expert at chemistry. Some people is an expert at music. Some people is an expert at. Some people are an expert at, singing, whatever, cooking. It's a good idea to learn it from the expert. Yeah. So, what is the reason of being so subtle and calm at the same time, and how can you do that? Like, because I personally feel that you are always very calm, like in every condition or situation. So, how do you do that? क्या आता है मतलब दिमाग में, और क्या वो इंस्टिंक्ट होता है कि आपको वो रोक देता है वो गुस्सा आने से या कुछ, मतलब सारी सिचुएशंस में आपका रिएक्शन बहुत ही सटल होता है, तो वो आप कैसे करते हो आप मतलब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को गुस्सा आता है। अब वो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ आई हैव सीन सिचुएशन नहीं है, very less it comes, मेरे को तब भी आता है, तो then also I am able to let go of it. अब लेट को अगेन सब लोग बोलेंगे जो सुन रहे हैं, अरे यार ये सब चीजें मेडिटेशन को बोल रहे हैं, हाँ है ही फायदा उसका, राइट, उसका है बाय प्रोडक्ट है ही उस चीज। बट एट द सेम टाइम देखो, देयर इज वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड, एवरीथिंग इज सो टेम्पररी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी टेम्पररी। So the moment you are talking to me right now, there are very bright chances that either of us might not be there in the next moment. There's a high probability. Yeah. Very true. So this is what I've realized in my life. So it's highly probable that everything is going to change very fast. So what am I getting angry on? What am I getting pissed off at? How am I reacting, responding? I do not know which breath would be my last breath, isn't it? Let me just enjoy that moment, no? If I can. If it is in my possibility, if it is in my power. Actually, you know why? This is something which is very different now. Have you ever felt, 3-4 weeks back, I was asking some students of mine, I was asking them, when do you feel like running away? Okay. यार मेरे को जाना है, बहुत हो गया। जैसे होता है ना कॉर्पोरेट में, तो होता है 5 दिन बहुत हो गया, अभी तो ऋषिकेश जाना है, अभी तो कुछ पार्टी करने जाना है, अभी तो कहीं पब में जाना है, बस अभी चिल मारने का। Exactly. When do you feel like running away? So मेरे साथ में अगर मैं पर्सनली ये चीज बताऊं तो see when there is a lot of burden, जब आपके पास हद से ज्यादा काम आ रहा है, आपको ऑफिस क्लास के बाद काम करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी चीजें आती हैं, जब आप मतलब वो चीजें आप नहीं कर पाते रहते हुए टाइम में ऑफिस आवर्स में, और आपको वो चीजें देनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है एंड यू हैव टू गिव देम। सो अगर वही सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है मेरे साथ, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को टाइम नहीं दे पाती, जो एक्चुअली मैं चाहती हूँ उन चीजों को दे नहीं पाती। तो वहां मेरे दिमाग में बस ये लगता है कि भाग जाओ, इन सब चीजों से दूर भाग जाओ, इतना दूर भाग जाओ कि बस वापस ही मत आओ। कभी कभी लगता है ऐसा, बट देन वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऑब्वियसली आपको करना वही पड़ता है जो प्रैक्टिकल होता है, एंड यू कांट रियली डू दैट। बट देन हाँ, छोटे मोटे ट्रैवल और इन सब चीजों से दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होता है, बट देन लगता तो है ही, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि चीजों से भागने का मन करता है, व्हेन यू फील सो मच बर्डन इन योर माइंड, या फिर कहीं ना कहीं पैनिक या इरिटेशन, या कुछ बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज्यादा डिप्रेशन कहीं से आ रहा है किसी चीज से, भले ही वो अब गॉड फॉरबिड हमारे साथ चीज नहीं होता, बट कई लोग, कई फैमिलीज भी ऐसी होती है जहाँ पे उनको फैमिली से भी बहुत प्रेशर आता है पीछे से, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे होते, या कुछ मैं बच्चों का या मतलब खुद की चीजें, तो उस चीज में मैंने बहुत लोगों को भागते हुए देखा है सिचुएशन से। और पता नहीं, मतलब देयर आर सिचुएशंस इन एवरीबॉडीज लाइफ आई गेस, सो हाउ टू डील विद इट। या मतलब पता है क्या, not dealing with it, first of all understanding that why do you feel like running away. You said so many sentences, I'll just frame it in one sentence. You feel like running away because you lose a sense of control in your life. Exactly, true. The control can be lost at anything, the food that you're having, the people you're talking to. अरे मैंने उसको ऐसे बोला, उसने मेरी तरह respond नहीं किया the way I was expecting it to be. क्या है यार, बॉस छुट्टी नहीं दे सकता, अकल नहीं है इसको। All that stuff happens, right? The sense of control is lost. And then if you want to have the sense of control in life, you need to understand that life is actually humongously, infinite, possibly uncertain.
Yeah. Anything can happen anytime. This is, this is something which is so beautiful. I think a lot of people have already talked about it otherwise. Nobody expected a time like COVID-19, right? Nobody expected. Exactly. Very uncertain. Very uncertain, right? I mean, people have coped up with it. Yeah. So many new ventures, so many new ideas, so many new ways of establishing a career have come up with people. This is just something that you like to do and you want to give it to your audience. But this came during the lockdown, right? This you versus you. Exactly. Right? This only comes when you have to understand that the moment a person is put against the wall, it's a guy or a girl is put against the wall and he or she has nowhere to run. They find solution. That is the time you are able to deal with uncertain times, and that is the time you expand the area of your control. Like this is also very interesting. A lot of us would have given 11, 12 exams. Sonali, have you given 12th exam? Yeah. Okay, one trick question था ये. So if you given 12th exam, तो जब एग्जाम हो रहे थे, बोर्ड का एग्जाम हो रहा था, तो थोड़ा टफ हो रहा था ना यार, कितने मार्क्स आएंगे, एडमिशन कहाँ मिलेगा, अरे यार बहुत डर लग रहा है, fidgety, panicky, everything, right? Yeah. The moment you gave the exam, you were very much stress relieved. The results came, you were even more relieved. And your cousin, your younger brother, was given the exam. The next year, he was about to give the exam. And what was your piece of advice to that person? Same. मतलब वही जो बोलने वाली बातें होती है कि स्ट्रेस मत ले, अभी बस 10 दिन का है, 20 दिन का है, अभी खत्म हो जाएगा, एंड देन सब ठीक हो जाएगा, एंड देन पर वो वही. हाँ, उसमें एक पीस ऑफ एडवाइस, अरे यार मेरा हो गया, तेरा भी हो जाएगा. हाँ, मेरा भी हो गया, तेरा भी हो जाएगा, सबका होता है. और बहुत आसान है, बहुत आसान है. और यही चीज आप एक साल पहले आप नहीं सुनते थे किसी की बात, लेकिन एक साल पहले की जो बात थी, now it seems like a dream. Yeah. It has already happened, no? Similarly, the situation which you think that it is so uncertain, how would I cope up with it? I am telling you, you are bigger than every situation in life. You'll cope up with everything. Your biggest failures, your biggest heartbreaks, your biggest career setbacks, your highest promotions, your well-loved life, everything, you'll cope up with everything. It is not what I am saying. I am saying, I am just making you observe it. You've already come through it. There's nothing that you've not come through. किसी लड़की ने लड़के ने आपको छोड़ दिया, आपको लगा जीवन खत्म हो गया, अभी आपको उसको सोच के हंसी आती है, क्या पागल था मैं, कहाँ अटका हुआ था. Everything actually changes, and uncertainty changes like this. It's just a frame of mind. अभी जैसे मेरे पीछे लाइट है ना, ये लाइट देखती है जो वैसे जा रही है ना, हैप्पी दिवाली. हाँ, एसी को डीसी काउंटर बनाते थे जब इंजीनियरिंग में करते थे, बनाए होगा तूने भी, है ना. तो ये भी देखो ना, दिस इज ऑल्सो फॉर टेम्पररी. It is going from one bulb and then coming down to the next bulb. दूसरे बल्ब की कोई सेंस नहीं रहती, उसकी कोई बेसिकली पहचान ही रहती, क्योंकि वो दिखता भी नहीं है. But again, the light is coming again to that bulb after just 10 seconds. Things keep changing, and I'm telling you, you are in the best spot possible. Even if you don't realize it, you are in the best spot possible. आपको लग रहा है नहीं वो मेरे से ज्यादा कर रहा है, वो मुझसे कम कर रहा है, उनसे कंपेयर मत करो. You are in the best spot. You will deal with uncertainty. You are very strong. कोई कमी नहीं है आपको, घर है, आप छत है आपके सर पे, खाना मिल रहा है आपको, है कपड़े तो मतलब बेसिकली सब लोग आज लॉकडाउन में तो एक ही टी शर्ट रगड़ दी है बहुत लोगों ने, एक टी शर्ट रगड़ दी है ना. और लॉकडाउन में लोगों को ये भी समझ में आ गया, पहले लगता था अरे काम वाली नहीं आ रही तो क्या करूंगा मैं, ये क्या करूंगा, अरे मैं कैसे खाना बनाऊंगा. अभी मैं बता रहा हूँ,
लॉकडाउन में एक दो चीजें तो लोग सीख चुके हैं कि झाड़ू मारते वक्त आगे जाना है, पोछा मारते वक्त पीछे आना है। और पहले था कि हर चीज गूगल कर रहे थे, आप रेसिपीज कर रहे थे, अच्छा ये बनाना है ये बनाना है। आज की डेट में आपके पास इतनी खुद की रेसिपीज है कि आप खुद डालने के लायक हो गूगल पे। एवरीथिंग चेंजेस मैन, कम ऑन, दिस विल आल्सो चेंज, डोंट वरी अबाउट इट। या अच्छा, मेरे को ना ये चीज पूछनी थी कि जैसे हम लोग एक क्वेश्चन भी आया किसी का, सागर कथुरिया का, कि इट्स इजी गिव एडवाइस टू अदर्स दैट डोंट वरी, बी पॉजिटिव इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट व्हेन इट कम्स टू यू इट्स मोर देन डिफिकल्ट टू स्टे काम और पॉजिटिव। हाँ, तो हमने वही डिस्कस किया, आपने बोला अभी वो चीजें धीरे धीरे वो डेवलप करनी पड़ती है दिमाग में, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मेरे को ये पूछना था कि जैसे कोई सिचुएशन है जिसके अंदर मेरे को कोई थप्पड़ मार के चला गया, ठीक है, या मेरे को कोई धक्का मार के चला गया, तो अब जो मेरा रिएक्शन निकलेगा वो रिएक्शन, दो रिएक्शन हो सकते हैं, या तो मैं उल्टा थप्पड़ मार दूंगी उसको, या फिर मैं शांत होकर बोलूंगी कि चल यार एक और मार ले, या फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और हंस के बस चली जाऊंगी वहां से। हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन? और वो डिफरेंट कैसे है और लोगों से? और जैसे अगर मैं हूँ, मैं अपना बताऊंगी तो शायद मैं, इट डिपेंड्स, मैं शायद थप्पड़ भी मार सकती हूँ उसको वापस, मतलब मैं मुस्कुरा के नहीं जाऊंगी ये पक्का है, लेकिन मैं मुस्कुरा के जाना चाहती हूँ, मैं थप्पड़ मारना नहीं चाहती उसको, मैं उसको इग्नोर करना चाह रही हूँ सिचुएशन को। वो शॉर्ट टेम्पर्ड जो लोग होते हैं मेरे जैसे, या फिर और बहुत सारे लोग जैसे, वो रिएक्शन मतलब से इसमें दो तीन पॉसिबिलिटी जो आपने बोली ना, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायलेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, राइट? One is the physical violence, right? Yeah. And second is the mental violence. Right? For example, you are walking somewhere, you're going to a new house. Well, if you go to US and you go to their schools, you know, आपने movies में देखा है, लेकिन actually में वहाँ पे there's a different level of bullying that happens. बंदे को ऐसा हो जाता है, anybody can have a, you know, personality crisis there. Okay. Right? And then people say, because of these people, I am in depression, or this person affected me like that. First, I'll talk about the mental violence. So let's say somebody calls Sonali stupid. You're so stupid. Now it depends totally upon Sonali whether to take herself as stupid or not. You know, a lot of people say, no, my self-respect is going. The word is self-respect. किसकी respect? Self की. कौन करेगा? खुद करेगा ना तुम. How is it going? नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई तुम्हें मेंटली हैरेस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेंटली हैरेस, जब तक तुम चूज ना करो मेंटली हैरेस होना। मेंटल वायलेंस का एक ही आंसर क्या है? अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना। आई विल टेल यू अ स्टोरी। तो there's this female elephant and there's this female dog, and both of them, you know, conceive the baby at the same time. Now, the female dog gave birth to her children 6 months later. Female elephant, no change in the body, nothing whatsoever. 12 months later, another set of children, female dog gave birth to. And she's saying, are you sure that you're even pregnant? You're expecting something? Doesn't seem like me. So far, you know, I've given 2 times, right? And almost 18 months later, the female elephant gives the birth to the female, to the elephant, to the baby elephant, right? And this female dog has given birth to one more lot of children. But the moment, you know, the female elephant, the baby elephant was born, everybody admired that elephant. And the elephant stood on its feet within the next 10 minutes. Whereas a lot of babies of the female dog died also. ऐसे हिंदी में एक कहावत है कि हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। The footprint of the elephant is so huge कि सारे पैर उसके अंदर कवर हो जाते हैं। The mind should be like the elephant foot.
which covers everything. You cannot get affected by anything. If you are getting affected, that is your choice. Now, female elephant could have gotten affected. अरे यार, तो क्या हो रहा है? मैं गलत तो नहीं हो रहा? अरे मेरे को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास चेक करवाने. She was patient. I know who I am. Let me handle it. So nobody can mentally harass you until and unless you choose to get harassed. और mental violence आपके साथ नहीं हो सकता जब तक आप choose ना करो. It is your responsibility. Trust me. It is again and again your responsibility. Right? अब आप बोलोगे अरे ट्विटर पे सेलिब्रिटीज को धमकी देते हैं कि भाई तुम्हें मार देंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे. उस टाइम अब आप बोलो कि मैं उसका रिस्पॉन्स क्या करूं, मैं सुनकर स्माइल करूं? नहीं 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 नहीं. पहली बात ये एक चीज समझो, उसने बोला है, कुछ होने वाला नहीं. इंडिया में एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, अगर आप मेट्रो में कभी आओ, दिल्ली मेट्रो में कभी राजीव चौक पे चढ़ने लगो, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, 10 मिनट तक ये चलता है, फिर दोनों चले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन. इंडिया में अधिकतर जनता यही है, ठीक है. लेकिन ये नहीं है कि अरे उसने रेप कर दिया और आपने कुछ सीरियसली लिया नहीं उस चीज को. उसने अरे नहीं, यू टेक इट सीरियसली बट यू कीप योर माइंड काम. उससे देखो अब वो आएगा, उसके आने से पहले ही आपको मृत्यु आ जाए, क्योंकि सोच सोच के आपको मृत्यु आने क्या फायदा है. अब उसने बोल दिया, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ धमकी दे दी, अब आप देखो ना आपको प्रिवेंशन क्या करनी है उसकी. लेकिन आप अरे उसने मेरे को बोल दिया, उसने मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मारेगा. अरे आप प्रिवेंशन करके रखो बस. अभी क्या है, लोकस्ट, देयर वर लॉट ऑफ लोकस्ट, यू नो, दो मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते, लोकस्ट का एक कील आने वाला था. सो एवरीबडी सील देयर हाउस. अब ये थोड़ा था कि अब वो बैठ गए कि लोकस्ट आए कि मैं मशीन लेके बैठता हूँ, अभी मारता हूँ कुछ कुछ कुछ. अरे तुमने सब कंप्लीट सील कर दिया, अब अपने घर में आराम से बैठेगा नहीं बैठेगा? अब जब आएगा लोकस्ट, उसको बाहर निकालना होगा, तब भी तो देखेगा ही. दिस इज हाउ द मेंटल वायलेंस इज. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट, राइट. अब आ जाते हैं फिजिकल वायलेंस पे. फिजिकल वायलेंस पे भाई साहब आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, कभी नहीं सहना. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गांधी जी कि नहीं आपके इधर चांटा पड़े, इधर नहीं लिखी, सॉरी. तुम भी उल्टा घुमा के मारोगे, लेकिन सारी चीजें देखकर. पता चला तुमने एक मारा, फिर तुम्हें 100 और पड़ रहे हैं. सारी चीजें देखकर. ये तब होगा जब तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग है, तब तुम देख लोगे कहां से क्या हो सकता है. Are you getting it? Anybody who is lost in emotions can get really in huge trouble. Anybody who's even in a fight and can maintain the sanctity of his or her emotions can win the fight. I'll tell you one. अब मैंने बहुत ही बार एग्जांपल दी थी, मैंने सेल्फी भी वही पहन रखी है, बट I have this favorite example. I can't tell you. So Cristiano Ronaldo, one of my favorite, मतलब actually my favorite footballer, right? This guy, he played for this team called as Juventus. It's from Italy, right? Italy. So there is this trophy in the FIFA scenario, which is called the Champions League trophy. So all the clubs throughout the world compete to win that cup, right? So actually the European clubs compete to win that cup, right? So now this team, Juventus, went to play a match against Atletico Madrid. Atletico Madrid is a team which is known for its foolproof defense. मतलब उनका डिफेंस पार करना, it's a Herculean task. And these people lost miserably. Juventus, Cristiano Ronaldo, they lost miserably. And the coach of the manager of Atletico Madrid teased him. He did a vulgar gesture, teased him. Now, what did Cristiano Ronaldo do? He was also angry, but he did this. That means I won Champions League 5 times, and you guys have won it 0. मतलब देखो अग्रेसिवनेस तो नहीं, ठीक है ना. तो उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन पहले चैंपियंस लीग का दूसरा मैच था एटलेटिको का यूवेंटस के साथ, उनके होम ग्राउंड पे, यूवेंटस के होम ग्राउंड पे. 5 दिन पहले रोनाल्डो ने बोला अपने सारे दोस्तों को, कम एंड वॉच द मैच, आई डिस्ट्रॉय देम. He scored 3 goals on his own.
That is what it is said, that revenge is a dish best served cold. Actually. So उसने he gave the reply, but he responded. He did not react. React is very impulsive. Response is something कि उसके बाद आई ना बात ही ना उठे बाद में. He responded, not reacted. Exactly. And he worked on himself to prove it. Similarly, अगर देखो कुछ violence हो रहा है, domestic violence हो रहा है, कभी सहन नहीं करना है. Call the police ASAP. Right? Any kind of violence, you just if police is there, please call them. And if you are capable enough, you have some self-defense training, you are like physically capable enough. Take matters in your own hands, but not with impulse, with response. Got it. This is how you deal with it. Well, according to me. नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकल भी है. मतलब जरूर आप इम्पल्सिव होके आप वो चीजें रिएक्ट भी कर जाओगे उस टाइम, तो आपको नहीं पता वो कितना भारी पड़ेंगी बाद में वो चीजें आपको. तो ऑब्वियसली आप इधर उधर देख के चीजें डिपेंड करके सिचुएशन कैसी है आपको वैसे रिएक्ट करना चाहिए. और जरूरी नहीं है रिएक्ट करना. इन केस इन अदर केसेस यू कैन रिस्पॉन्ड टू सेम सिचुएशन अलग अलग तरीकों से. सो या राइटली सेड. What is the how to live a very efficient and optimum life according to you? कि minimal requirement क्या होती है एक लाइफ में जीने के लिए, और जो हमारे पास अभी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनसे अट्रैक्ट होता है इंसान. मतलब कुछ भी बोलो, मतलब एक पेन से लेके एक अच्छी साइकिल से लेके एक अच्छे कपड़ों से लेके, मतलब हर चीज जो भी आजकल इतनी ज्यादा फैशन में है, उनसे मतलब एक एफिशिएंट लाइफ कैसे जी जाए एक तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से. नहीं देखो, एफिशिएंट और ऑप्टिमम लाइफ सभी लोग जी रहे हैं. मैं ये नहीं कहूंगा अगर आपको गुच्ची का शौक है तो आप गुच्ची का शौक छोड़ दो. मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है आप वो ना खरीदें. मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा. मैं ये कहूंगा देखो, जो आप खरीद रहे हैं, जो भी चीज आप लग्जरी पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग सम मनी, you should also do some charity. मतलब ideally it is said that whatever income you earn, 60% you should invest, 30% you should spend, 10% you should do charity. Great. Ideally, right? So invest का मतलब आप something which investment is something which is helpful for you in the long term. Exactly. Having said that, मैं नहीं करता हूँ. ये आइडियल बात है, मैं नहीं करता हूँ. So I can't invest because there's so many things that I have to take care of. And मैं इसको excuse नहीं करूँ, करने को कर भी सकता है, लेकिन it's fine. This is how I live, right? Yeah. I have no regrets. But ideally, it is said 60% invest, 30% spend, and 10% you do charity. Charity का ये रहता है कि अब आप वो charity को लोग कहाँ पे करें. अरे सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं, पिक्चरों में भी यही दिखाते हैं. आप देखो जहाँ पे देखो आपका intention matter करता है. Your intention matters all the time. Right? If your intention is pure, that's fine. Then they take away that bad impression in their life. If they are using your money for the wrong doing, right? A lot of people ask me, they're traveling in the car with me and they say, भैया आपको क्या लगता है इनको देना चाहिए कुछ जो बेगर गाते हैं? मैंने कहा तेरे दिल से इच्छा उठी हो दे दे. अब मेरे साथ क्या होता है? A lot of my students also practice, but I can also share it over there. So what I do is I carry these small 1 rupee biscuits of Parle-G in my car. Right? So anybody comes and asks me for money or something, I give that back to that. खाएगा तो सही. वो पैसा पता नहीं कहीं देना होगा, कुछ करना होगा, Parle-G को जोड़ के क्या करेगा? वैसे टूट जाता है, पकड़ने में टूट जाता है बिस्किट को. वो चाय के अंदर नहीं टिकता है बेचारा बिस्किट. क्या करेगा? खा ही देगा ना उसको, खा लेगा. आप कर सकते हो. आप you be innovative, right? You be innovative. What do you think that you can do? Yeah. Very interesting answer. नहीं, बहुत सही बोला आपने. तो
ओके सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट पीपल जो जैसे हम लोग मोबाइल से, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आजकल बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के टाइम कुछ ज्यादा ही हमारा जो एक रिलेशनशिप है विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यू नो दैट. सो हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स कि कैसे दूर रहा जाए? दूर तो चलो नहीं भी रहा जा सकता क्योंकि यू हैव टू नीड देम समहाउ कहीं ना कहीं लाइफ में, अभी रोज के लाइफ में. But what would you suggest in exercise or any kind of special yoga or meditation kind of thing जो उसमें help करे, या फिर basic है, basic चीजें करने से it will be helpful? देखो ये बहुत ही ऐसा हो गया ना, अभी आप चाहते हो कि इधर सब कुछ ही ऐसे तो कुछ तो जुगाड़ हो. मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा नजरिया चेंज कर लो. आप फोन, और ठीक है टाइम पास करने के लिए फोन है, लेकिन उसको अच्छे टाइम पास के लिए यूज करो. अभी आप भी तो यूज कर रहे हो फोन को, मैं भी तो यूज कर रहा हूँ फोन को. वी आर डूइंग इट फॉर नाइस थिंग, राइट? आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा नेटफ्लिक्स और प्राइम और ये हॉटस्टार वेस्टेज ऑफ टाइम है. अगर आप सही नजरिए से देखते हो तो आपको बड़ी नॉलेज भी मिल जाती है उससे. बिल्कुल. लाइक आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सो यू नो वी डिस्कस मूवीज. हम मूवीज डिस्कस करते हैं. तो गॉडफादर एक बहुत तगड़ी क्लासिक मूवी है, राइट? गॉडफादर 1 में ही देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड एज गॉडफादर वीटो कॉर्लियोनी, राइट? द वे ही टॉक्स इन द ओपनिंग सीन, ही गिव्स, जो एमबीए में भी नहीं मिलता है आपको नॉलेज, मैं आपको बता रहा हूँ. ही गिव्स द नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. ओके. That entire movie is like based on how do you, I think a lot of it has been picked up from Chanakya. The dialogues have been translated from Sanskrit to that, a lot of it. It's so practical. It's so practical. हाँ मतलब देखो फिक्शन तो हर जगह होता ही है. उसको लड़की पसंद आ गई, उसको प्यार हो गया, उसकी लड़की को कुछ में गोली मार दी. अब ये तो देखो रहेगा ही रहेगा, इस तरह से इंडस्ट्री चलती है. लेकिन आप जो लेके जाना चाहते हो वो देखो आप. और आप योगा बोलो तो मतलब देखो इस टाइम पे आप कर रहे हो, इतना कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है. अभी मैं 2-3 बार तो मैं ही स्ट्रेच कर चुका हूँ आपके सामने. तो करना चाहिए शोल्डर्स को, नेक को थोड़ा स्ट्रेच कर लो, क्योंकि आप बैठे रहोगे ऐसे देखते रहोगे. इससे अच्छा थोड़ा स्ट्रेच कर लो साथ साथ. सही बात. आइज की एक्सरसाइज कर सकते हो. देखो बाबा रामदेव सुबह आते ही हैं, आप बहुत चीजें देखते हो उनके साथ. आइज की एक्सरसाइज होती है, सब कुछ है ही, राइट? इट्स ओके. मतलब अब मेडिटेशन क्या, कोई भी मेडिटेशन करोगे सब रिलैक्सिंग. लेकिन मैं आपको बताऊं, यू लर्न इट फ्रॉम अ टीचर. मैंने पहले भी बताया, फॉर द पीपल हु जॉइंड इन राइट नाउ, गुरु के बिना गति नहीं है. आपको सीखना चाहिए. ऐप में कुछ नहीं रखा है. वो ऐसी टाइम पास थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बोलोगे अरे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं. तभी आपको एक टीचर की आवश्यकता है. वो इंस्पिरेशन आना बहुत जरूरी है फ्रॉम विद इन, ताकि आप आगे बढ़ पाओ चीजों को लेकर. राइट. या सो ओके. सो क्या था जो मेरे दिमाग में ना चल रहा है बहुत टाइम से, मतलब रिजेक्शन होता है. ठीक है, रिजेक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जो सबकी लाइफ में आती है, मतलब और हर रिस्पेक्ट में. अब रिजेक्शन जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप से रिजेक्शन हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब आपको नहीं मिली उससे रिजेक्शन हो गया, या फिर कुछ भी, need anything under the sky. So how to deal with the rejection? मतलब कैसे आप कैसे deal करते हो? How to deal with the rejection? I personally deal with it in the sense that I have to become better now. Yeah, okay. I have to improve. You know, again, there was a discussion that I was having with some people 3 days back. You know, a lot of people used to come to me and say, अरे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए नहीं होती थी, कोटा था. अरे इसलिए नहीं हो, कोटा था. मैं उससे यही पूछता हूँ, तेरे को 100 में से 100 लाने में किसने मना किया? अगर तू 100 और 100 लेके आता, कौन सा कोटा तेरे को इफेक्ट करता क्या? तो अब बात वही है कि रिजेक्शन आप इस तरह से मान लो, शायद आई लेफ्ट सम स्टोन्स अनटर्न्ड. Keep it as stepping stone to your success. Success भी क्या बोलूँ? I'll say the entire human life is a process of going from
अननोन टू नोन एंड नोन टू अननोन। अननोन टू नोन मतलब कैसे, मुझे पता है मुझ में ये गलत है, मुझे इसको ठीक करना है, तो ठीक होके मैं ऐसा हो जाऊंगा। और उसके बाद आपको पता नहीं है उसके बाद भी आपका पोटेंशियल कितना हाई है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव इन यू। आपको पता नहीं है कि आप कितने केपेबल हो, यू नो। अब जैसे दिस इज अगेन माय फेवरेट एग्जांपल नाउअडेज। आई कैन सी अ कैलेंडर बिहाइंड योर हेड, या देयर इज अ कैलेंडर बिहाइंड योर हेड, इंडिया का मैप, इट्स इन इंडिया का मैप, राइट। और एक ड्रीम कैचर भी है ना आपके सर के पीछे, ऑलवेज देयर। हाँ, ड्रीम कैचर, राइट। आप ऐसा मान लेते हैं, अच्छा इन दोनों चीजों को आपने देख लिया ना, अब आप देख लो पूरा रूम अच्छे से देख लो इन दोनों चीजों को छोड़ के, एक बार हैव अ लुक। या देख लिया कितने फैन है, कितनी लाइट है? एक फैन, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक साइकिल, एक वर्ल्ड मैप। ग्रेट। एक वर्ल्ड मैप और ड्रीम कैचर को छोड़ के जो जो चीजें हैं एक बार फटाफट मेरे को डिस्क्राइब कर दो। और एरिया कितना होगा रूम का? बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक छोटा सा स्टडी रूम है, और एक व्हाइट बोर्ड भी है, एक बेड है। मतलब अच्छा, चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। जो ड्रीम कैचर है उसके कंपैरिजन में एरिया तो बहुत ही बड़ा है ना, मतलब ड्रीम कैचर छोटा सा है ना। बिल्कुल। और वर्ल्ड मैप है उसके कंपैरिजन में भी बहुत ही ज्यादा एरिया है आपके पास, राइट। नाउ दिस ड्रीम कैचर इज द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू नो दैट यू हैव। ओके। That world map is the amount of knowledge that you know that you do not have. Okay. Right? The area in your room is the knowledge that you do not know about and you do not even know that you have or you do not have. आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। उड़ गया फिर से। जो ड्रीम कैचर है वो नॉलेज जो आपको पता है आपके पास है। हाँ, वो हो गया वर्ल्ड मैप जो आपको पता है आपके पास नहीं है। एंड देन द एंटायर रूम, इतनी नॉलेज जो आपके जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है और आपको अवेयरनेस भी नहीं है। So there's so much potential like this entire room that you have, but you're focusing on these two aspects of the room only. Actually, yeah. So rejection क्या? It is a stepping stone to success. बहुत समय है, बहुत काम है। क्या रिलेट किया? हाँ? क्या रिलेट किए हो? बहुत अच्छा रिलेट किया है। सही है। और बताइए। Okay. So let us take some questions जो लोगों ने पूछे हैं। Kanika Israni says, what does one do in that moment when you know you are overpowered by emotions in the middle of the brawl? उस moment में क्या करें? क्या? Okay, so what does one do in that moment where you know you are overpowered by emotions, basically? So in the middle of some brawl or you know उस moment में क्या करना चाहिए? When your emotions overpower you. Do not listen. Do not beat yourself up. गुस्सा आ गया, निकाल दिया, ठीक है, आगे बढ़ो। It's a process of growth. It's a process of transformation. It's a process of evolution. It happens. Mistakes will commit. Why are you so afraid of committing a mistake? Just do it and get over with it. It will anyway teach you a lesson. हाँ. Yeah. Sorry. Actually, रोना जैसे पता नहीं लोग कैसे लेते हैं रोने को, बट इज क्राइंग बैड? मतलब लोग रोते हैं या इमोशंस बाहर निकालते हैं, क्या रोना गलत होता है? क्योंकि यहाँ पे भी जेंडर इस चीज को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ, लड़का रोए तो इट्स रॉन्ग, लड़की रोए तो लड़की है रोएगी। तो आई थिंक वो जो चीज है, वो थिंकिंग है, वो कहाँ से आ रही है पता नहीं, बट रोना एक इमोशन है। अगर निकल गया, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आंसू तो उन दोनों के है ही ना अंदर। तो मतलब वो कैसे सोनाली, ये बहुत क्लीशेड है। ये तो मतलब वो सलमान खान की पिक्चर की तरह हो गया, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा क्लीशेड। अरे यार क्या हो गया? इट्स you know a lot of these teleserials or these online platforms, OTT show that you know males who cry are very strong or males who cry who are very vulnerable, females who do not cry they are so hurt. नहीं यार, अरे यार तेरी लाइफ है, तू अगर दूसरों के टर्म्स पे डिफाइन करी हुई चीज जिएगा तो कैसे जिएगा?
तू लड़का है, तेरे को लड़का पसंद है, दैट इज परफेक्टली फाइन. तू लड़की है, तेरे को लड़की पसंद है, दैट इज परफेक्टली फाइन. तू लड़का है, तेरे को दोनों पसंद है, तब भी फाइन है. It is your life. The only thing is whether you are happy or not. किसी के पास Lamborghini है, वो भी हैप्पी नहीं हो सकता, और किसी के पास Atlas साइकिल है, वो बिल्कुल बहुत खुश रह सकता है. It's all a state of mind. तेरे को रोना आया तो रो दिया, चल आगे बढ़. तेरे को हंसी आई तो हंस दिया, चल. जरूरत नहीं है कि सुपरस्टिशन है, ये है, वो है, नहीं. इमोशंस है, निकाल दिए, खत्म. Just move on. इतना क्या, किसी को याद नहीं रहता. You know this world is a very peculiar place. This world is a very peculiar place. It forgets its heroes fast and its villains even faster. तूने कोई कांड किया ना, तेरे को जल्दी भूल जाएंगे. अभी 6 साल पहले विजय माल्या ने कुछ कांड किया होगा. अरे कौन विजय माल्या, कौन है? अभी मिलेनियम जनरेशन को पता भी नहीं होगा विजय माल्या कौन. नीरव मोदी ने इतना कांड किया, भूल गए, सब भूल गए. अभी देखो चाइना बॉर्डर पे पूरी टेंशन है, लेकिन चल क्या रहा है लोगों के जीवन में, कंगना ऐसे कैसे कर सकती है. कंगना बहुत छोटी मेमोरी होती है. तुम क्या सोच रहे हो? रोए तो रोए यार, लोग कहा था 10 साल के लिए 5 साल के ताने दे देंगे. वो बेवकूफ है जो पकड़ के रखते हैं. तुम अच्छे रहो, बढ़ जाओ आगे. ये तो होगा ना, तुम्हारे पास कहानियां तो होगी. देखो मैंने करा ये सब चीज, मैं रोया भी हूँ लोगों के सामने पब्लिकली, मैं हंसा भी हूँ. that makes your character so lively and so lived that you've lived your life. You've created, you've done idiotic things, you've come out of it. You've done beautiful things, you've lived out of it. Agreed. Fine. Okay, so Yadav Agni Mitra says, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं sometimes. Okay, Yadav, हो सकता है. Sagar says, भैया suggest some books related to spirituality for beginners. Any books? Yeah, so this is book that you should always. Well, this is one of my go-to books every time when I'm stuck. Till now, if I get stuck in something, An Intimate Note to the Sincere Seeker. Okay. I repeat, An Intimate Note to the Sincere Seeker. One book, right? Intimate Note to the Sincere Seeker. Okay. Yeah. स्पिरिचुअल बुक यार, और मेरे पास कुछ है नहीं स्पिरिचुअल बुक के नाम पे. मैं आपको बोलूं, अगर आपको पढ़ना है तो हाँ, यू शुड ऑलवेज रीड पतंजलि योग सूत्र. यू शुड कंसल्ट एवरी टाइम इन योर लाइफ. इट इज एन इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ द माइंड. इट्स अ बुक. Yeah. Okay. A lot of people have given commentaries on that. Patanjali Yog Darshan is given by Maharishi Patanjali. A lot of people have given commentaries on it. Gurudev Shri Ravi Shankar ji has also given commentary on it, and I found it complete out of all the books that I've read. So you can read that. If you are a Sanskrit scholar, then you just read Patanjali Yog Darshan. You'll understand everything thoroughly. Yeah. तो ये है. अब आप मेरे को बोलो नहीं अल्केमिस्ट पढ़ लेता हूँ, फॉलो बोलोगे, वो सब एक बंदे का एक्सपीरियंस है. ऑल शूटिंग शिट विद कॉन्फिडेंस. आपके किसी के जीवन में फर्क पड़ा, वो बोलते हैं वाह वाह मेरे जीवन में फर्क पड़ा, नहीं तो फिर ठंडक गोपाल. मैं जो आपको बुक्स बता रहा हूँ, इट इज नॉलेज फॉर सेंचुरीज. यू विल गो थ्रू every word will actually generate a new depth for you every time you read it. This is how it is. मतलब मेरे एक्सपीरियंस. बाकी आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग और एनीबॉडी एल्स इज रॉन्ग और एंडोर्सिंग सम अदर पीपल. बिल्कुल. बट दे आर मोर लाइक एक्सपीरियंसेस. मैं अपनी बुक लिखूंगा, आपको लगेगा अरे ये बंदा बहुत बढ़िया है, रॉबिन शर्मा बहुत बढ़िया है, चेतन भगत बहुत बढ़िया है. Something which lasts even beyond the person's personality. That is what I am aiming for. Great. So now I want to interact with you through a rapid fire. So I have few words or sentence, and then you have to instantly say the answer. Okay? So तुरंत की तुरंत दिमाग में आए. ये तो बहुत नर्वस सा करने वाला है, मतलब ये तो. अरे नहीं, बहुत ही हल्का है वो.
क्वेश्चन से इजी होता है ये, मतलब ये जो भी दिमाग में आए, A to Z अंदर स्काई कुछ भी आए आपको बस ऐसे इंस्टेंटली बोलना है, ठीक है? विल स्टार्ट। सीक्रेट ऑफ हेल्थ। माइंड। सीक्रेट ऑफ एजुकेशन। डिटर्मिनेशन। व्हाट इज फ्रीडम टू यू? I've never been bounded. How can I be free? Competition. Required with yourself. Secret of happiness. You are happy. Enthusiasm. Opposite of lethargy. Yeah. Drugs or alcohol? Fresh juice. Okay. Man made God, God made man. There's a slash in between. You are God. Social media like FB, Insta, Twitter, YouTube. What? Choose one. Anything. Yeah, you have to say what comes in your mind after, social media सोच कर. Dual-edged sword. Can kill Okay. or can make life. Okay, how does it feel to be questioned all the time? I couldn't hear it. What? How does it feel to be questioned every time? Useful. Oh, nice. Okay, great. Amazing answers. And they were really good. मतलब instant, बहुत अच्छा reaction आपने दिया. That was really good. So, what is intuition? What is instinct? इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब ये मैं खुद पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे मेरे को ना कभी कभी मैं खुद बताती हूँ, मैं अगर साइकिल चला रही हूँ और मैं बगल में पार्क है और आगे जाके मैं देख रही हूँ कि एक कार खड़ी हुई है। अब मेरे को ना यहाँ से इंट्यूशन आता है या पता नहीं क्या कि मैं ना आगे बस यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है ना, यहाँ मैं गिर जाऊंगी एकदम स्पीड ब्रेकर के बाद आके, फिर मैं गिर जाऊंगी यहाँ पे। और एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं गिर गई हूँ, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मैं एक्चुअली आगे जाके गिर गई हूँ वहाँ पे स्पीड ब्रेकर के बाद, और जहां मुझे एग्जैक्टली लग रहा था दूर से कि हाँ मैं यही गिरूंगी और मैं गिर गई हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज दैट। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओगे ना, लेट्स से यू हैव अ वेरी वोलेटाइल एंकल। वोलेटाइल एंकल मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके क्लासमेट भी कोई होगा या आपका नोन कोई होगा, फ्रेंड, भाई बहन कुछ भी, तो एक व्यक्ति का ना एक एंकल ट्विस्ट होता ही रहता है, तो ट्विस्ट कर देता है। और डॉक्टर के पास जाओगे, अरे सर मेरा मतलब क्या, मेरा फ्लैट फुट है क्या है, वो ट्विस्ट कर जाता है। तो कहेगा नहीं, ये आपकी मेमोरी है जो बोलती है कि इस एंकल में चोट लगी हुई है, तो ये अपने आप उस मेमोरी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है और ट्विस्ट कर जाता है। तो माय ब्रदर इज सेइंग अभी भी पीछे गिर सकती हो। तो अभी भी ये जो मेमोरी है वो एक्ट करती है। इंट्यूशन इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन यू फॉल डाउन? फॉलिंग डाउन इज राइट फॉर यू। Doing the right thing at the right time is intuition. Taking the right decisions at the right time is intuition. And how does intuition work is when your mind is all clear. For example, little थोड़ा सा मैं philosophical बताना पड़ेगा। एक टैप में से पानी आता है ना, अगर फुल फ्लो पानी चाहिए, ऊपर से प्रेशर बिल्कुल सही है टैप में, लेकिन फुल फ्लो पानी चाहिए, तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी पाइप है वो गंदी ना हो, कोई कचरा ना जमा हो, जुक करके पानी निकले, राइट? वही चीज एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इंश्योर करना पड़े ताकि इंट्यूशन हो। ऊपर से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और ऊपर क्या है, ये नहीं कि कोई हेवन है कुछ अर्थ, नहीं, आपका चीजें रिस्पॉन्ड करने का तरीका आइडियल हो रहा है, राइट टाइम पे राइट चीज करने का हो रहा है। इट्स जस्ट अंदर इतना ज्यादा कचरा भरा होता है कि वो एक्ट नहीं हो पाता है। करेक्ट। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड, आप कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हो, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको एकदम से ऑप्शन, हाँ ये है, लेकिन आप बोलते नहीं दूसरा कर लेता हूँ, दिमाग लगाते हो। दैट फर्स्ट फीलिंग इज इंट्यूशन।
और वो आंसर भी वही निकलता है सही, राइट? सो इट इज हाउ क्लियर यू आर. जैसे एक प्रिज्म होता है ना, पढ़ा हमने देखा है ना जब फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में. जब व्हाइट लाइट देखते हैं तो 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 7 लाइट. लेकिन अगर आप रेड लाइट करोगे तो वो रेड लाइट की तरह ही उसका कलर हो जाता है प्रिज्म का. ब्लू करोगे तो ब्लू हो जाता है. Your mind, you know, the entire mind consciousness has to be like a prism for the intuition to act. If it is already colored, then the colors would mix and mingle. So it has to be clear. Then intuition acts. Instinct एक होता है आपके body का instinct. जैसे आप कभी गए हो तो कोई reflexes check करता है, वो एक छोटा सा एक hammer होता है, वो मारता है आपका पैर ऐसे, it just goes up. आपका हाथ ऐसे चला जाएगा. मेरे को एक्चुअल टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रहा. एक इंस्टिंक्ट बॉडी इंस्टिंक्ट वो होता है. फिर एक माइंड का आपका पैटर्न इंस्टिंक्ट बन चुका होता है कि आपको पता होगा, अगर आप हॉस्टल में रह चुके हो, आपकी रूममेट का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता था, इसको मैं ये बोलूंगी ना, इसको पक्का गुस्सा आने वाला. तो वो उसका इंस्टिंक्ट बन चुका है. ओके, वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने वाला है. अब इंस्टिंक्ट को और आगे लेके जाना, मैंने एक टेड टॉक दी थी, उसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बात किया था. वो भी एक कार्टून कैरेक्टर से उठाया, एक एनिमे से. ओके. तो क्या होता है, वो बंदा, कैरेक्टर का नाम है गोकू कैकेरॉट, एक वॉरियर रेस को बिलोंग करता है. हाँ, तो वो एक वॉरियर रेस को बिलोंग करता है और उसका एक ही जीवन में गोल एक है कि उसको बेस्ट फाइटर ऑफ द यूनिवर्स बनना है. और उसको लगातार फाइट करता रहना है, क्योंकि जितना वो ज्यादा फाइट करता है उतना वो ज्यादा इंप्रूव करता है. विद एवरी ओपोनेंट ही बिकम स्ट्रॉन्गर. एंड मजेदार बात है, एवरी टाइम ही फाइंड्स अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट आल्सो. बट एक बार द लास्ट सीरीज इन व्हिच ही वाज फाइटिंग, सो यू नो ही फाउंड अ वेरी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट जिसको हरा ही नहीं पा रहा था. So what he did was, whatever he wanted to do, whatever happened to him, but somehow or the other, he just overpowered the entire thing, and his body responded without any command from his mind. That is ultra instinct. Okay. और वो इंस्टिंक्ट भी हमारे अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी स्पोर्ट्स खेलते वक्त, आप एक चीज को इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको बॉल बहुत स्लो मोशन में आती हुई दिखेगी, आपको पता है आपने कहाँ घूमना है, आपने कहाँ शॉट मारना है. या आपने साइकिलिंग के वक्त भी करा होगा, आप चला रहे हो, आपके मन में विदाउट एनी यू गिविंग एन इंस्ट्रक्शन सेपरेटली, इट विल अप्लाई ऑल द इंट्रिकेट फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स, ऑफ मोशन, ऑफ कैलकुलस, एंड टेल यू कितने एंगल पे आपको साइकिल मोड़नी और आप वहां से बाहर निकल जाओगे. दैट इज प्योर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट. इंट्यूशन मेडिटेट करके डेवलप होती है, योगा करके बिल्कुल होती है. इट हैज बीन अ प्रूवन स्टडी. यू नो, यू डू योर आसनास प्रॉपर्ली, तो इंट्यूशन एनहांसेस. नाइस. एनी मूवी और सॉन्ग दैट यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? एक मिनट, अर्पित ने लिखा है, मेरे तो एग्जाम में इंट्यूशन वाले सारे आंसर गलत होते हैं. वही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारा इंट्यूशन ठीक नहीं है. मेडिटेट करना थोड़ा स्टार्ट करोगे तो अच्छा लगेगा. अगर लॉजिक वाले तुम्हारे सही निकलते हैं, ठीक है, फिर पढ़ के जाया करो ना. इंट्यूशन तुम्हारे लिए बनी नहीं है. हाँ, अच्छा, गुड. He's saying, so you mean मैं रोज आप अपने बॉस से लड़ाई करूं? किस चीज के लिए? ये तो आप ऐसा हो गया ना, ये तो बोलेंगे जो मैंने बोला, अब मैं तो उसको जिस तरह से भी इंटरप्रेट कर लूं. ये तो वही हो गया कि ग्लास आधा भरा है तो आधा खाली है, लेकिन अगर दरवाजा पूरा खुला है तो पूरा बंद थोड़ा हो सकता है वो. अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन उस बात पे ही सेइंग. ओके, इन रेफरेंस टू कार्टून कैरेक्टर्स. वो तो आप देखो, स्वाद अनुसार रहता है, इच्छा अनुसार रहता है. आपका बॉस भी वैसा वाला कैरेक्टर है जिसको फाइटिंग करके इंप्रूव होना है, तो फिर देख लो, अगर आपको ही होना है फिर तो वो मानेगा ही ना. बाकी लोग जो ड्रैगन बॉल वाले हैं उनको भी इंप्रूव करना है अपने आप को फाइटिंग करके ना.
Limited knowledge is a dangerous thing, my friend. यस मैम, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जिसके होने के चांस 1% से भी कम हो, वो हुआ है मेरे साथ भी। कल भी सोता था तो स्नेक सच में आ गया। काट नहीं। सो क्या है, बाकी सारे क्वेश्चंस इतने ही थे हमारे पास। विशेष, so we want to know any song or movie that you're inspired from except Godfather you said, या कोई भी गाना हो या फिर जिसकी लाइंस आपको बहुत पसंद हो या फिर बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो आप। बहुत गाने हैं यार, मतलब आई जस्ट टेक वन राइट नाउ। एक ना पैसेंजर एक बैंड है, उनका एक गाना है लेट गो। हाँ, तो ये बड़ा ऐप्ट वाला है। You only miss the sun when it starts to snow. Yeah. You only hit the road when you're missing home. मतलब आपको अपने जीवन में ऑपोजिट का वैल्यू बना के रखना चाहिए थोड़ा। अगर किसी चीज का एक्सेस हो जाता है तो दूसरी चीज का खत्म होने लगता है। अच्छा रहेगा कि आप दोनों चीजों को मिक्स करो, इक्वली इतना करो, फिर उसकी अहमियत रहती है जीवन में। Very true. It's a lovely song, yeah, by the way. अभी भी कुछ लोग बोलेंगे अरे लेटर गो, नहीं कुछ लोग बोलेंगे लेटर गो, तो जाने दो उसको, क्या मैं पकड़ के रखूंगा अपनी गर्लफ्रेंड। अरे यार तू जैसे इंटरप्रेट करना चाहता तू वैसे कर। बट नेवरदलेस इट इज जस्ट अबाउट सीइंग दैट देयर आर सम antonyms, some opposite, some things which are really different from each other, but you value them when their time is there. You have a value for everything. So I've seen you singing TEDx में ना सफरनामा के कुछ लाइंस रिसाइट करते हुए, and very beautiful. जब मैंने वो चीज सुनी थी तो you know, कभी आप गाने को उस तरीके से नहीं सुनते जैसे सुनना चाहिए। आप कोई गाना लगाते हो, you hear it for enjoyment, आप काम करते रहते हो कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, पर बहुत कम होता है कि आप सच में लिरिक्स के लिए सुनते हो गाने और इतने मीनिंगफुल गाने सुनना चाहते हो। आप सच में अगर सोचने बैठो तो सारे गानों में कहीं ना कहीं बहुत मीनिंग छुपा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो हम नहीं इतना पता लगा पाते। एंड सफरनामा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो कैन यू जस्ट रिसाइट दोस लाइंस जो आपने TEDx में एक बार, क्योंकि दोस आर ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांट टू यू टू यू नो रिसाइट एंड टेल द मीनिंग हियर, वो चीज वो दोबारा से। मतलब ये वही है जिस तरह से हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था ना। People keep looking for answers. They want to live somebody else's story in life. I remember when I was pretty young. So देखो अब जब छोटे होते हैं तो घर वाले बड़े खतरनाक हेयर स्टाइल्स करवा देते हैं आप। अब कोई ऐसे वो मशरूम कट होता है, वो ऐसे कटोरा रख के पूरा। अब अगली बार बंदे को लगता है कि पेरेंट्स तो अपने शौक में करवा देते हैं पूरा ये चीज, लेकिन बाद में मुझको ऐसा लगता था कि बस मैं आंखें बंद करके आज सोया हूँ, कल सुबह तक मेरे बाल उग जाए। या मैं अभी सोया हूँ तो मैं कल पुशअप मारना स्टार्ट करूंगा तो मेरी 6-पैक एब्स आ जाए। We want to live somebody else's dream all the time, and it's almost a dream. And we want to complete ourselves through different things in life. For example, somebody in a relationship, you get married, there's a completion. You get appointed as a CEO of Google, completed. No, it is not there. Trust me, it is not. I'm not saying don't go there, don't get married, don't have a girlfriend, don't become a CEO of Google. Please do that. But it's an ideal thing to do that when you are actually complete in yourself. And that thing would not affect you at all. It will just give you more means of enjoyment in life. तो वही सफरनामा में लास्ट लाइन यही बोलता है, मतलब उस लाइन में बोलता है वो, जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, जिसे ढूंढा जमाने में उसी में है। We keep finding things outwards, right? It's just there inside me. There inside me. The whole journey is an inside affair, but we make it a little outside.
good it is. Very beautiful. Thank you for that. बाकी मैं अगर एक चीज बताऊँ ना, आपका नजरिया जो लाइफ को देखने का है ना, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत ही डिफरेंट है वो बहुत सिंपल, बट वो इतना इजी नहीं है आजकल वो ढूंढना, मतलब लाइफ में, और हर कोई इस तरीके से सोच नहीं पाता. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, ताकि लोग थोड़ा देखें और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों को देखकर कि क्या करना चाहिए एक्चुअली, सिर्फ बातों में ही नहीं, पर किस तरीके से लाइफ को डिफाइन किया गया है और हम कैसे जी रहे हैं फिलहाल. तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जीना, बस ये है कि आप किस तरीके से जी रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अब मैं आपको एक्चुअली मतलब लोगों को बताऊंगी कि यू आर एन IITian, आप राइटर हो, स्टोरी टेलर हो. मैंने इंट्रोडक्शन में आपका कुछ भी नहीं बोला है, बट आई नो पर्सनली कि आप एक स्टोरी टेलर हो, आपने TEDx टॉक्स दी हैं, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर नेशनली इंटरनेशनली, आप बहुत सारे टॉक्स देते हो. आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे सेशन करोगे मेरे साथ? ये तो मैं सोच रहा था कपिल शर्मा के लिए मैंने रोक के रखा हुआ था ये वाला डायलॉग. मैंने आपके लिए नहीं यार. I think Sonali, the thing that you perceived कि यार कितना कुछ किया हुआ है आपने, ये किया आपने वो किया, I'm telling you it's happening. I know. हो गया, तो इसमें मेरा कोई योगदान है नहीं. मेरा योगदान सिर्फ यही है कि मैं ठीक दिख रहा हूँ. That's pretty much it, and it is always good to have an interaction with somebody like you. My pleasure. Intellectual questions पूछते हो आप लोग. अरे. You are using the social media to the best in the best way that it can be. It's a good idea to do that. In fact, if I had to do something like this, it is very difficult for me. To all the people who are there, I am a little. I am tech savvy, but during these things, I'm not really comfortable with. Yeah. So it was Sonali who, from yesterday, she's been helping me out. कि इस बटन को ऐसे प्रेस करोगे तो आप लाइव आ जाओगे. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको ये चीजें करना. There are some people in the audience also who helped me through that when I had a session with them also. But अभी भी I am not that comfortable, not really. मेरे ख्याल से मेरा चौथा ऐसे होगा, चौथा ही होगा ऐसा कभी इंटरेक्शन. तो हुआ ही नहीं है ज़्यादा. See, that's how you think, and you are amazing, like in every way actually. So okay, we are taking some compliments from here. So Rahul Bharadwaj says, यार इनको तो बीच में बुलाते रहना अगर ये अवेलेबल हो तो. बिल्कुल आते रहेंगे हमारे साथ विशेष जी, बिल्कुल आते रहेंगे हमें इंस्पायर करने के लिए. Sing one song from Juventus Club. वो नहीं आता यार, रोनाल्डो फैन है. Okay. मैम ऐसा क्यों होता है, हमें जो भी अपने लिए सोचते हैं कुछ अच्छा वो नहीं होता, लेकिन दूसरों के बारे में कुछ सोचो वो तुरंत हो जाता है. तो अब ऐसा सोचो ना फिर आप दूसरों के बारे में कि दूसरा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करके जाए, उसमें उसका भी फायदा हो, तुम्हारा भी हो जाए, उसका भी हो जाए. सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में के सिवा कभी फीलिंग के साथ भी जाते हैं? हाँ यार, चला जाता हूँ. मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, खा लेता हूँ. चला जाता हूँ बिल्कुल चला जाता हूँ. मेरा मन कर रहा है आज मैं नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है यार. बट हर चीज का अपना टाइम बना होता है, उसको टाइम के अनुसार कर लिया तो अच्छा ही रहता है. बिल्कुल अग्री. सो आई थिंक मेन चीज जीवन क्या नाम है, यादव नाम है. मेन चीज यादव की ये है कि आपको जीवन में चिल मारना है. अब देखो, चिल आप फुटपाथ पे ही मार सकते हो, 5 स्टार पे ही मार सकते हो. आपको कौन सा चिल पसंद है वो आप देखो. सही बात है. ओके यादव जी, यू गॉट योर आंसर. बाकी आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम टुडेज सेशन. क्वेश्चन हमने सारे ले लिए हैं. Okay, so coming back to you, it was so lovely talking with you, Vishesh sir, Vishesh bhaiya.
आई हैव टेकन योर सेशन, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट अंदर रहती है. आई नो कि वो सेलिब्रेशन मैटर इतना नहीं करता, बट देन आई डोंट वांट टू इधर बार बार भैया बोलना भी मुझे सही लग रहा था, बट देन अंदर से देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट जो मुझ में है आपके लिए और हमेशा रहेगी, बिकॉज आई नो यू स्टे इंस्पायर्ड और आप लोगों को भी उतना ही एक्टिव रखते हो और इंस्पायर रखते हो अपनी बातों से, अपनी उन एक्सपीरियंसेस से जो आपने आपकी लाइफ में देखे हैं. सो very brave of you, and thank you so much for joining and sharing with all of us. It was very lovely talking to you. Like literally, it was very adventurous. And lots of people are saying कि हम fan हो गए, हम तो fan हो गए. अभी बहुत गर्मी है, AC हो जाना चाहिए. AC हो जाओ अब, हाँ. चलो अच्छा है. Okay, so that's all we have. Thank you so much. Okay. I'll see you some other time. Stay inspired, stay healthy. So all of you take care, and all of you just, keep investing time on yourself and other people as well. Good idea. अच्छा, इसको एग्जिट कैसे मारते हैं मुझको नहीं पता है अभी. ये एग्जिट मैं यहाँ से मारूंगी. You just have to say nice words last में जाते हुए, and then I'll exit. Anything you want to suggest or say, anything? All of you should just learn meditation. Once learn meditation, it's a good idea. अगर आप पहले से करते थे तो रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं. Good idea. Very nice. Yeah. चलो. Bye. Thank you so much. Thank you people for joining.